Miller and Urey experiments. Today's topic is one of the most important topic in the history of evolution, as we know that primitive conditions were enough to make that organic molecules which we are seeing right now. So experiment was conducted by two scientists, that is Stanley Miller and Harlow Urey. Further, we are going to see what experiments they have performed and what was the result. Miller-Urey experiment. The nature of the origin of life on Earth remained one of the most inscrutable scientific questions. In the 1920s, Russian biologist Alexander Oparin and with British evolutionary biologist and geneticists John Haldane proposed the concept of primordial soup, describing the primitive terrestrial oceans containing organic compounds that may have facilitated chemical evolution. कि नेचर में ओरिजिन कैसे हुई लाइफ की और कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनस्क्रूटेबल क्वेश्चन है कि आखिर ये कैसे हुआ। कोई एक एविडेंस या ऐसी कुछ चीज़ें है नहीं जो प्रूव कर सके कि हाँ जो लाइफ अर्थ में हुई थी वो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। तो इन द 1920s में रशियन बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन और ब्रिटिश के बायोलॉजिस्ट जॉन हेल्डन ने एक थ्योरी एक प्रपोज किया कंसेप्ट को, दैट इज प्रीमोरोडियल शो। प्रीमोरोडियल सूप क्या है? ये एक प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल ओशन है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल इवोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। However, it wasn't until the 1950s when chemists began to conduct deliberate laboratory studies aimed at understanding how organic molecules would have been synthesized from simple starting material on the early Earth. उसके बाद 1950s में क्या हुआ कि जो केमिस्ट थे उन्होंने डेलिबरेटली क्या किया, लेबोरेटरी में वो सारे परफॉर्म करने लगे, कंडक्ट करने लगे एक्सपेरिमेंट्स, ये देखने के लिए कि किस तरीके से लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी अर्थ में। One of the one of the first reported to this end was synthesis of formic acid from the irradiation of aqueous CO2 solution in 1951. In 1952, Stanley Miller, then a graduate student at the University of Chicago, approached Harold Urey about being an experiment to evaluate the possibility that organic compound importance from the original life may have been formed abiologically on the early Earth. तो फिर क्या हुआ कि 1952 में स्टैनली मिलर जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, उन्होंने अप्रोच किया यूरे को और उन्होंने ये बताया कि क्या किया, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो भी चीजें स्टार्ट हुई हैं अर्थ में, वो एबायोलॉजिकली स्टार्ट हुई हैं। His experiment was conducted using a custom built glass apparatus designed to stimulate the primitive earth. ठीक है, तो उन्होंने custom built glass apparatus को यूज किया था primitive earth को, primitive earth में कैसी conditions होंगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए। Miller's experiment mimicked lightning by the action of electric discharge on a mixture of gases representing the early atmosphere in the presence of liquid water reservoir representing the early ocean. तो जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था वो क्या, उन्होंने क्योंकि उस वक्त एनर्जी तो चाहिए लाइटनिंग वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, मिमिक किया लाइटनिंग को बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था अर्ली एटमॉस्फेयर को इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर रिजर्वायर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था अर्ली ओशन को उस टाइम के लिए। The experiment used water, methane, ammonia, hydrogen and electric arc. ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में इन सब चीजों का यूज किया था। अब रेशियो क्या था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या रेशियो था स्टेनली और मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट में। तो बेसिकली जो एमोनिया था, मीथेन था, एमोनिया था और हाइड्रोजन, वो 2:1 के रेशियो में लिए गए थे। The apparatus also stimulate evaporation and precipitation through the use of heating mantle and a condenser respectively. ठीक है, तो जो apparatus था वो क्या evaporation और precipitation को भी क्या कर रहा था, stimulate कर रहा था। After a week of sparkling, the content in the flask was visibly transformed. The water turned a turbid reddish color and yellow-brown material accumulated on the electrodes. मतलब जब after week of जब एक्सपेरिमेंट वीक तक चलता रहा तो ये देखा गया कि जो वाटर था वो क्या हुआ, टर्न हो गया टर्बिड में और रेडिश कलर जो है वो ऑब्जर्व हुआ एंड येलो ब्राउन मटेरियल एक्यूमुलेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोड्स थे वहां पे येलो ब्राउन कलर के कुछ मटेरियल्स जो है वो क्या हुए, एक्यूमुलेट हो गए। This groundbreaking work is considered to be the first deliberate efficient synthesis of biomolecules under the
स्टिमुलेट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। तो इसे क्या माना जाता है कि हाँ ऐसे ही कुछ हुआ होगा और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने प्रूव किया था। नाउ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था क्या, तो वही था कि मीथेन, वाटर, एमोनिया, हाइड्रोजन वर ऑल सिलेक्टेड टुगेदर इन द रेशियो 2:1 inside a sterile 5-liter glass flask connected to a 500 ml flask half full of water। तो इन सब चीजों का यूज किया गया था 5 लीटर एक ग्लास फ्लास्क में, विल सी द पिक्चर, जो कि कनेक्टेड था 500 ml फ्लास्क हाफ फुल ऑफ वाटर। The water in the smaller flask was heated slightly to induce evaporation and the water vapor was allowed to enter the large flask। तो जो water था small flask में उसे क्या किया, हीट किया गया slightly कि वो evaporation को क्या कर सके, induce कर सके, and the water vapor was allowed to enter the large, और जो भी water vapor था उसे एक large flask में क्या हुआ, enter कराया गया। A continuous electric spark was discharged between a pair of electrodes in the large flask। तो continuous क्या हुआ, electrical spark को discharge किया गया between a pair of electrodes जो उस large flask में। The spark passed through the mixture of gases and water vapor stimulate lightning in the hypothesized primordial atmosphere of the earth। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो डिस्चार्ज किया गया। ठीक है, द स्पार्क पास थ्रू, और वो जो स्पार्क था वो क्या हो रहा था कि जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस थे, वाटर वेपर थे, उनसे क्या हो रहा, उनसे पास हो रहा था और स्टिमुलेट कर रहा था लाइटनिंग को। Then the apparatus was cooled so the water condensed and tricked into a U-shaped trap at the bottom। फिर क्या होता था कि जो apparatus था वो cooled होता था और जो water था क्या होता था, condense होता था और trickled into a U-shaped एक trap था bottom में, वहां पे वो जाके trickled होता था। After a day, the solution that had collected in the trap was pink and after a week of continuous operation the solution was a deep red and turbid। मतलब जब स्टार्टिंग, मतलब एक दिन बाद ही क्या देखा गया कि जो ट्रैप था जो कलेक्ट हुआ था वो पिंक था, बट जब ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस चलता रहा तो जो कलर था वो चेंज हो गया डीप रेड और टर्बिड में। द बॉइलिंग फ्लास्क वाज देन रिमूव्ड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड वाज एडेड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग फ्लास्क को रिमूव किया गया और उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड डाला गया कि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो ना हो। The reaction was stopped by adding barium hydroxide or sulfuric acid and evaporated to remove impurities। ठीक है, Using paper chromatography, Miller identified 5 amino acids present in the solution। ये सारे जो भी environmental basically किया गया कि उन्होंने क्या किया कि एक बनाया कि हाँ ये कंडीशन उस समय रही होगी प्रिमिटिव कंडीशन में जब अर्थ पे लाइफ का बिगनिंग या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए थे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बिगनिंग थी, तो किस तरीके से हुआ होगा, उन्होंने ये परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट में। और उन्होंने क्या किया कि इस एक ग्लास फ्लास्क में वो सारे कंडीशंस प्रोवाइड किए जो उस वक्त रहे होंगे, वो लाइटनिंग रही हो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू, और जो भी गैसेस वगैरह है मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, उन सबको एक 2:1 में क्या किया, दिया। और उसके बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वीक मंथ ऐसे कंडक्ट किया और डीप रेड और टर्बिड क्या वाटर में वो फॉर्म हुआ, कलर जो है डीप रेड दिखने को मिला। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी से उन्होंने क्या किया, 5 मेन एमाइनो एसिड को क्या हुआ, फाइंड किया गया। अब वो कौन कौन से थे, ग्लाइसिन, अल्फा एलेनिन, बीटा एलेनिन वर पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड while aspartic acid and aminobutyric acid were less certain due to spots being faint। ठीक है, स्पॉट्स फेंट हो गए थे, बट बेसिकली ये मेन जो एमाइनो एसिड जो थे वो वहां पे पाए गए थे। In a 1996 interview, Stanley Miller recollected his lifelong experiment following his original work and stated, "Just turning on the spark in a basic prebiotic experiment will yield 11 out of 20 amino acid." उन्होंने बताया कि इतना यही करके हम क्या 11 अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, सारे कंडीशंस प्रोवाइड किए और देखा कि ये सारे अमाइनो एसिड जो है वो बने होंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ होगा, जो भी थे उनका फॉर्मेशन हुआ होगा और अर्थ में जो है लाइफ की बिगनिंग होगी। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव दैट कि हाँ ये कोई कंडीशंस रही होंगी और उसके बाद ये सारे चेंजेस आए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि बेसिकली जो अमाइनो एसिड जो है उनको फर्स्ट देखा गया। ये मिलर एक्सपेरिमेंट का जो पूरा सेटअप था, ये ग्लास था जहाँ पे सारे गैसेस थे और ये इलेक्ट्रिकल स्पॉट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, बॉयल हो रहा है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है
और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है वो गैसेस यहाँ पे है। तो इस तरीके से क्या हुआ था, मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था और उन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो उस समय ऐसे ही फॉर्म किए होंगे और लाइफ में समवेयर ऐसी ही बिगनिंग जो है वो हुई होगी।